آگے بڑھاتے ہیں تذکار حکمت کے سیشن میں. اور آج جو ہمارا دوسرا سیشن ہے وہ پینل ڈسکشن ہے. میں اپنے محترم اسپیکر صاحب کو دعوت دوں گی کہ وہ ہمارے پہلے پینلسٹ کے طور پہ تشریف لے کر آئیے. جو باتیں جو سلائیڈ آپ کی رہ گئی تھیں وہ کثر آپ یہاں پہ نکال سکتے ہیں. اور میں گزارش کروں گی ڈاکٹر رضا الحق صاحب سے کہ سر پلیز تشریف لے کر آئیے ایز اے پینلسٹ. آپ ہمیں جوائن کیجئے. ہم آپ کے وزڈم چاہیں گے کہ ہم آپ سے مستفید ہو سکیں. ہمارے نیکسٹ پینلسٹ ہیں حکیم نسیم قاسمی صاحب، طبیب ہیں. سر پلیز آپ ہمیں ایز اے پینلسٹ جوائن کیجئے. نیکسٹ ہماری پینلسٹ ہیں طبیبہ لبنہ خان صاحبہ. آپ میڈم پلیز ہمیں جوائن کیجئے. طبیبہ ہیں، سینئر طبیبہ ہیں اور طب کی پریکٹس کے حوالے سے بہت اچھا ایکسپیرینس رکھتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فہمیدہ خواجہ صاحبہ، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں نرسنگ میں. ہم ہیپاٹائٹس میں نرسنگ کیئر کے حوالے سے میڈم کی ایکسپرٹیز جاننا چاہیں گے. تھینک یو. تو میں اپنے پینل ڈسکشن کا آغاز تھینک یو. چلیں، اندازہ ہوا کہ جاگ رہے ہیں آپ لوگ. ظہور صاحب کے لیکچر میں سونا ویسے بھی مشکل ہوتا ہے، سوالات بہت کرتے ہیں. میں ابتدا ظہور صاحب سے ہی کروں گی. ظہور صاحب، آپ نے جو کثر رہ گئی ہے وہ یہاں آپ کی پوری بھی ہو جائے. آپ نے ڈائگنوسس کے حوالے سے ہمیں اچھا بریف کیا. میں جاننا چاہوں گی کہ جب طبیب کے پاس کلینک میں یا فزیشین کے پاس کلینک میں ہیپاٹائٹس کا پیشنٹ آتا ہے تو وہ کون سے میجرز ہیں، وہ کیا علامات ہیں جن کی بنا پر ایک طبیب کو کانشیس ہونا چاہیے کہ اسے کیا ٹیسٹ فوری طور پہ کروا لیے جائیں، کیونکہ ٹیسٹ کا اپنا بھی ایک برڈن ہوتا ہے. وہ کون سے ٹیسٹ کروائے اور وہ کون سی علامات ہوں گی جن کی بنا پہ جو ہے وہ ٹیسٹ کروایا جائے گا. دیکھیں آن ہے. سب سے اہم جو علامت ہے جو معروف ہے جوائنٹس یا آنکھوں کا پیلا ہو جانا، اس پہ اکثر طبیبوں کا اور عوام کا اس طرف توجہ جاتی ہے کہ یہ اگر آنکھیں پیلی ہوئی ہیں تو کہیں نہ کہیں لیور جو ہے سو متاثر ہوا ہے. جیسے ابھی میں نے بات کی تھی اپنے لیکچر کے دوران بھی، آنکھوں کا پیلا ہو جانا ضروری نہیں ہے لیور سے متعلق ہی ہو. یہ پری ہیپیٹک پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں جس میں آپ کے RBCs بہت تیزی کے ساتھ رپچر ہو رہے ہوں، یا پوسٹ ہیپیٹک ہو سکتی ہے کہ کہیں آپ کی کامن بائل ڈکٹ جو ہے وہ بلاک ہو رہی ہے. تو ضروری نہیں ہے. پہلے تو یہ کہ جوائنٹس اگر ہے تو آپ کو اس طرح متوجہ ہونا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ہیپاٹائٹس کی پریولنس ہے تو وائرل ہیپاٹائٹس کے حوالے سے اسکریننگ جو ہے وہ ضرور بنتی ہے. دوسری علامت ہے فٹیگ، مستقل تھکاوٹ کا شکار رہنا، کھانا کھا کے بھی، آرام کر کے بھی، اور طاقت کی دوا لینے کے باوجود بھی اگر پیشنٹ یہ فیل کرتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ فریشنس فیل نہیں ہو رہی، تو یہ دوسری ایک علامت ہے جو کہ انرجی جو ہے وہ اس کے لیور سے نہیں مل رہی. تیسرا یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اسے سینے میں جلن ہونا اور بدہضمی کسی کیفیت رہنا. یہ کچھ چند علامات ہیں جو میری کم و بیش 16 سال کی پریکٹس ہے اسپیشلی ہیپاٹائٹس کے ساتھ. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا جو ہے وہ MOU سائن ہے ویڈیو پیسنل میڈیسن سے یہاں پر میڈیکل سروسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے. اس پلیٹ فارم پہ میں وہاں پر اسپیشلائز کلینک کر رہا ہوتا ہوں ہیپاٹائٹس کا، تو وہاں مجھے ڈاکٹرز کی طرف سے ریفر کیے جاتے ہیں کیسز، خاص طور پہ ایسے کیسز جن کو ٹرانسپلانٹ اور لیور جو ہے نا فیلئر کا وہ شکار ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. یا انٹرفیرون اور ریگوورین جب ٹریٹمنٹ رہی تو اس وقت جو ہے وہ بہت سارے کیسز میں ریلیپس آتا تھا، یا ان کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ میں فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ ہربل کی طرح ریفر کرتے. تو یہ میرا ایکسپیرینس رہا. ان میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جوائنٹس، فٹیگ، کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ انڈائجیشن پیک پر ہوتی ہے. اگر یہ علامات ہیں تو پھر وائرل ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ کروانا جو ہے وہ لازمی ہوگا. صحیح، تھینک یو. میں سوال کروں گی ڈاکٹر رضا الحق صاحب سے. سر، جیسے کہ ظہور صاحب نے کہا بھی کہ ہمارے پاس جب طبیب کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو ہم ریفر کر دیتے ہیں ہاسپٹل کی طرف،
اور بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو ہاسپٹل سے یا ڈاکٹرز کی طرف سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. سو وہ کون سی میجرز ہیں, وہ کون سی علامات ہے, کون سی اسٹیٹ ہوتی ہے جب ایک پیشنٹ جو ہے وہ کنونشنل میڈیسن کے ٹریٹمنٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اب کسی دوسرے آلٹرنیٹیو کی طرف جانا چاہیے. جیسا کہ ظہور صاحب نے بتایا کہ جو مروجہ جو علاج ہے وہ اگر کامیاب نہیں ہوتا تو بندہ ہاتھ پاؤں آتا ہے اور پھر اس میں جو ہوتا ہے کہ آلٹرنیٹ میڈیسن بھی ٹرائی کی جائے. ہو سکتا ہے کہ آلٹرنیٹ میڈیسن میں اس کا بہتر علاج ہو سکے. تو انفیکٹ جو ہیپیٹائٹس اے اور ہیپیٹائٹس ای وہ کسی بھی علاج کی کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ صرف ریسٹ اور فلوئڈ سے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں. اس میں اگر ہیپیٹائٹس اے اور ای ہے اور سب سے پہلے کہ اگر کوئی ظاہر بہت جانڈس نظر آ رہا ہے تو اور اس کو لاس آف ایپیٹائٹ ہے یا اس کو فیور کے ساتھ بھی علامات شروع ہیں تو زیادہ امکان اس کا ہے کہ وہ ہیپیٹائٹس اے یا ہیپیٹائٹس ای کا شکار ہو. تو اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشانی ہونی چاہیے. اس میں صرف فلوئڈ اور ریسٹ سے کسی میڈیکیشن کے بجائے پیشنٹ کی بجائے صرف مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے کہ اس کا سیرم گلوکوز کم ہونے لگا ہے اور کم ہونے لگا ہے تو ایس جی پی ٹی کہتے ہیں وہ کم ہوتا جائے گا, لیکن وہ بالکل کسی بھی میڈیکیشن کے بغیر ٹھیک ہو سکتا ہے. دوسری جو بیماری ہیپیٹائٹس بی اور سی کی ہیپیٹائٹس بی ان میں البتہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اس میں پتہ چل جائے کہ یہ ہیپیٹائٹس بی ہے اور تو نیچرلی کے لیے پروگریس کرے گا اور اس کے لیے علاج شروع ہو جائے گا. جب اس کی کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں, مثلاً اسائٹس جیسے پیٹ میں پانی بھرنا یا خون کی الٹیاں ہونا, یہ علامات ہیں کہ لیور کنسیڈریبل ڈیمیج ہو چکا ہے. اور کنسیڈریبل ڈیمیج میں جو سیروسس ڈیولپ ہوتا ہے اس میں سسٹمک سرکولیشن اور ٹوٹل سرکولیشن, لیور کے اندر اپنی ایک سرکولیشن ہوتی ہے اور ایک سسٹمک سرکولیشن جو ہوتی ہے اس کا شنٹ بن جاتا ہے. وہ that shunt leads to portal hypertension اور portal hypertension کی وجہ سے پورے ہمارے جو کھانے کی نالی ہے اسوفیجیل ویریسس کو کہتے ہیں اور اس میں وہ اس پورٹل ہائپرٹینشن کی وجہ سے خون کی الٹیاں ہوتی ہیں. خون کی الٹی نہ بھی ہو اور وہ خون اندر انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی ہو, اس کی نشانی ہوتی ہے کہ پیشنٹ ایک تو ویک ہوگا, تیز ہوگا, اس کا ہیموگلوبن نیچے جائے گا اور پلس اس کو ٹیکیکارڈیا ہوگا, ہارٹ ریٹ فاسٹ ہو جاتا ہے. اگر ہارٹ ریٹ ایسے ہیپیٹائٹس کے پیشنٹ کو جس کو یہ کمپلیکیشن شروع ہو گئی ہے اور وہ اس کو ہارٹ ریٹ فاسٹ ہے اور تیز ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کو اندر بلیڈنگ ہو گئی ہے اور اس وقت اس کو اینڈوسکوپی کر کے اس کو ہم ٹانکے لگاتے ہیں. ان ایسے جو بلیڈنگ پوائنٹس ہیں ان کو ہم پلگ کر دیتے ہیں اور ان کو کلیمپ کر کے ٹانکا لگتا ہے. اگر ایسا نہ کیا جائے تو وہ اندر بلیڈ کرتا رہتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی لوز دا پیشنٹ. تھینک یو سر, آپ نے بہت تفصیلی جواب دیا. میں جاننا چاہوں گی آپ سے, جیسے کہ ظہور صاحب نے بھی ہمیں بات کی کہ جب کوئی طبیب اگر کنونشنل میڈیسن پرسکرائب کرے تو ہمیں عطائی کہہ دیا جاتا ہے.
سو آج کل انٹیگریٹو میڈیسن کی اپروچ جو ہے بہت ہائی لائٹ کی جا رہی ہے اور WHO بھی اس کو جو ہے ریکمینڈ کر رہا ہے. ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا کہ یہ رواج جو ہے تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ظہور صاحب نے بھی اپنی پریکٹس اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے, کیا اس طرح کے سیریس ڈیزیزز کے لیے ہمیں شروع سے ہی انٹیگریٹو اپروچ اپنانی چاہیے؟ ہر مرض کا علاج ایک طریقے سے ممکن نہیں. کسی مرض کا علاج اب آپ کے یہاں اچھا ہو سکتا ہے, کسی مرض کا علاج ہم لوگ نہ کرتے ہیں. تو یہ کمبائنڈ اپروچ ہے جو کہ صحیح صاف کا بھی نظریہ تھا کہ یہ کوئی بھی ایک طریقہ علاج پرفیکٹ نہیں ہے unless we integrate and unless we use both the methods combinedly. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگ زیادہ اچھا کرتے ہیں اور ایلوپیتھی میں اس کا اتنا اچھا نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ایسا بھی ہے جو ہم اچھا کر سکتے ہیں. وہ ہم ایکیوٹ ڈیزیزز میں اور سرجری کے حوالے سے بالکل ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن کرنٹلی جو انٹیگریٹو میڈیسن کی اپروچ ہے ہمیں یقیناً اس پہ صرف سرجری نہیں, اور بھی بہت ساری یہ تمام اینٹی ڈرگس یہ ایلوپیتھک جیسے کہ WHO نے کہا کہ آپ سپورٹو تھراپی دیں, آپ سپلیمنٹری ٹریٹمنٹ کریں, اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے. آپ اینٹی ریٹرووال بند کر دو ہماری دولت, یہ آپ لوگ نہیں کر سکتے. نہیں سر, انٹیگریٹو اپروچ میں جو ہے ہم قطعاً ان میڈیسنس کو بند نہیں کرتے, بلکہ اینٹی بایوٹکس, اینٹی وائرل اور دوسری میڈیسنس کے ساتھ ساتھ ہربل میڈیسنس جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں. پلس یہ کہ اب ہربل میڈیسنس کے اوپر بھی ایڈوانس اسٹڈیز ہو رہی ہیں اور ان کی اینٹی بایوٹک اور اینٹی مائکروبیل اور اینٹی وائرل ایکٹیویٹیز پہ کام ہو رہا ہے, جو ہم نے کووڈ میں بھی دیکھا کہ ہمیں بڑے اچھے اس پہ ریسرچز ملی ہیں. کوئی بھی ایک طریقہ علاج پرفیکٹ میتھڈ نہیں ہے, آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی اور ہمیں آگے بالکل, اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. میں میڈم فہمیدہ خواجہ صاحبہ سے بات کرنا چاہوں گی. میڈم, نرسنگ کیئر کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہمیں اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے, اور کیا جو ہے وہ پیشنٹس کے لیے بھی اور طبیبوں کے لیے بھی کیا امپورٹنس ہے نرسنگ کیئر کی ان ہیپاٹائٹس؟ تھینک یو. میں کہوں گی کہ نرس جو ہے نا بہت امپورٹنٹ رول ادا کر سکتی ہے لائک ہیلتھ ایجوکیشن کے پریونشن کس طریقے سے کی جائے. ہینڈ واشنگ ہے اور ہیپاٹائٹس بی ہے تو اس کی ٹرانسمیشن میں جو ہے نا وہ رول ادا کر سکتی ہے. ہاسپٹل میں اگر پیشنٹ ہے تو OPTs وغیرہ جو ہے وہ یوز کر سکتی ہے. اس کے علاوہ ویکسینیشن کے لیے جیسے ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین ہے تو اس کی ویکسینیشن کے پراپر ڈوزیج جو ہے وہ لگانے کا اس کا مین رول ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہاسپٹل میں کوئی پیشنٹ ہے تو اس کو ٹیچنگ دیں گے کہ اس کے گھر والوں کو کس طریقے سے پریوینٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی ہوتا ہوگا نا تو اس کے حوالے سے بھی اس کو ہیلتھ ایجوکیشن دے سکتی ہے. تو نرس جو ہے نا اس کے علاوہ کمپلیکیشن کے لیے بھی جو ہے نا اسکریننگ کروا سکتی ہے, سپورٹ کر سکتی ہے. ہائی رسک جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو سمجھا سکتی ہے. کاؤنسلنگ بہت اہم رول ہے, بہت ضروری ہے. تھینک یو میڈم. میں ہمارے ساتھ ایک سینئر طبیب موجود ہیں, حکیم نسیم قاسمی صاحب, بہت اچھا کلینکل ایکسپیرینس رکھتے ہیں. سر, آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. ہیپاٹائٹس کی ڈفرینٹ اقسام ہیں. ظہور صاحب نے بھی کچھ میڈیسنس کے نام لیے, کچھ ایویڈنس بیسڈ اسٹڈیز بھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک طبیب کے پاس جب پیشنٹ آتا ہے, کلینکلی جب ڈائگنوز کرتے ہیں کہ یرقان ہے, جوانڈس ہے, اب چاہے وہ یرقان اسود ہو, یرقان سندھی بھی جسے ہم کہتے ہیں, یا سادہ یرقان ہو, سو اس پہ طبیب جب میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے تو چوائس آف میڈیسن کیسے ہونی چاہیے؟ اسے کیسے پتہ چلے گا یہ کس ٹائپ کا جوانڈس ہے اور مجھے کون سی دوا اسے پرسکرائب کرنی چاہیے؟ اور اگین وہی بات کہ بدرکا کیسے چوز کیا جائے؟ بہت شکریہ.
शुक्रिया अदा करता हूँ। मैम भी यहाँ बैठी हैं, हमारे साथी भी यहाँ बैठे हैं। तबीब को जब तक अपने ऊपर एतमाद नहीं होगा इलाज मुआवजे के लिए, और उसके लिए कुल्लियात कानून जो हमारा एक बेस है, स्कूल ऑफ थॉट है, फलसफा है तिब्बे यूनानी का, हम तिब्बे यूनानी पर जब तक अमल नहीं करेंगे अच्छे तबीब और अच्छे मुआलिज नहीं बन सकते। कोई भी डायग्नोस्टिक के लिए जब हम पता ही नहीं है कि ये कौन सा मर्ज इसको लाभ हो रहा है, कौन सी अलामात हैं, और इसकी दवा जब तजवीज़ करेंगे तो हम उसका अपना मिजाज क्या है, उस हर्ब का मिजाज क्या है, कंपाउंड बनने के बाद उसका मिजाज क्या है, ये टेम्परामेंट जिसको मिजाज है। लेकिन बच्चे मेरे पास आते हैं रोटेशन के लिए, अक्सर हमदर्द से भी आते हैं और जिना से भी और जयाउद्दीन से भी। माजरत के साथ मैंने यही देख रहा हूँ कि कुल्लियात कानून पर उनको बिल्कुल इतनी आगाही नहीं है। इसके लिए मसला क्यों आ रहा है इसमें, वो भी मुझे मैं बता देता हूँ। उसका मसला यूँ आ रहा है मैम कि हम अपनी ज़बान पर अबूर नहीं हासिल कर रहे हैं, और हमारी कुतुब जो है सारी, हमारा कुल्लियात कानून ख़ास तौर पे ये अंग्रेज़ी में है, मिलते ही नहीं। तो बच्चे जो उर्दू भी नहीं जानते, जो हमारे इंटरमीडिएट के बच्चे आते हैं, इनको उर्दू भी नहीं आती। मेरा ये गुजारिश है कि या तो उनको ट्रांसलेट इंग्लिश में करें या इन बच्चों को उर्दू और फारसी सिखाएं, क्योंकि हमारा सारा बेस वो इसी पे कर रहा है। जो बच्चे आ रहे हैं इनको कुल्लियात, ये फिर मेडिकल स्टूडेंट है ना, तो मेडिकल और फिर हमें ईस्टर्न में हमें फ़र्क क्यों करना पड़ा, तो हमें इसको निकलना होगा। तो बात कहीं और जा रही है। हम जब तक अपनी रिसर्च को बेहतरीन नहीं कर सकते माजरत के साथ, जब तक हमारा पेशेंट हमारे सामने नहीं होगा, हमारी रिसर्च सही नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे पास इंडोर पेशेंट ही नहीं है। जिस दिन इंडोर पेशेंट आ जाएगा, हम हर मर्ज का हम बता देंगे कि इलाज है तिब्बे यूनानी। हमारे अकाबरीन ने किया है, उन्होंने सर्जरियाँ भी की हैं, वो बिल्कुल मिलती हैं, उन्होंने टाँके भी लगाए, आंखों का पुराना पूरी हिस्ट्री मिलती है। सर्जरी तो हमारी ही मिराज है, लेकिन हमारे पास इंडोर अब पेशेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंडोर पेशेंट यूँ नहीं कि हॉस्पिटल नहीं है। हमारे बच्चे सारे नसीम साहब प्लीज, हमारे पास वक्त की तंगी है, तो आप प्लीज कम टू द पॉइंट। इसके लिए जैसे अद्वियात के ऊपर, अद्वियात पर बात हो रही है कि इसके मुख्तलिफ चीज़ें हैं, हम तबीब जो है इलाज करते हैं। वही मैं बात पर आऊँगा कि मिजाज जब तक हम नहीं पता करेंगे, हम आप क्या समझते हैं हेपेटाइटिस का मिजाज क्या है? हेपेटाइटिस सी हमारा यरकान अस्वद है। कौन सी खिल्त की खराबी से होता है हमारे ये टेम्परामेंट मिजाज जो है, ये सर्द और खुश्क मिजाज जब हमारा होता है तो ये मर्ज पैदा होता है, इस मर्ज में ही पलता है। हमें उस टेम्परामेंट को ठीक करना है। जब हम उस टेम्परामेंट को ठीक करने के लिए हमारे पास अतियात है, जैसे ऊँट कटा मेट्रोथेरेपी की बात की, जापान में उन्होंने मुलेटी में जो पुराना काम करते हैं इसमें। लेकिन हम पहले करेंगे पेशेंट टू पेशेंट, कि पेशेंट की अलामात और उसकी पूरी हिस्ट्री क्या है। जब तक हम इस पर नहीं जाएंगे, हम इसको दावे नहीं कर सकते और ना दावा करना चाहिए। हम जब ही कर सकते जब हम हॉस्पिटलाइज करके पेशेंट का सही ट्रीटमेंट करते हैं, वरना क्लिनिक मेरे पास भी होता है, मैं भी रिकॉर्ड रखता हूँ, सब कुछ है, लेकिन उसको हम स्टैंडर्ड रिसर्च नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया नसीम साहब। हमारे साथ हमारी सीनियर तबीबा मौजूद हैं, तबीबा लुबना खान साहिबा, और बहुत अच्छा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस रखती हैं। तबीबा साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ज़हूर साहब ने भी कहा और हम तिब्बे यूनानी में भी पढ़ते हैं कि लिवर जो है वो बॉडी का किचन है, तो उसमें तमाम चीज़ें कुक होती हैं, मेटाबॉलिज्म पूरा यहाँ हो रहा होता है। आजकल एक ट्रेंड है कि लोग जो हैं वो बग़ैर ज़रूरत के भी सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं। आप क्या समझती हैं कि क्या ये सप्लीमेंट्स लेना इस तरह ज़रूरी है और इसके जिगर पे क्या असरात होते हैं? सबसे पहले तो यहाँ के मौजूद हैं माँ निगरानी है, उनको सलाम और जो सामने इतनी मोहब्बत और इख्लाक से सुन रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि वो इतनी मोहब्बत से हमारी तरफ रुझू हैं, बातें नहीं कर रहे। ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। ये हमदर्द के स्टूडेंट्स हैं और जिन्ना के, ये तिब के स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली ये तिब के स्टूडेंट्स हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे बात की साइमा, तो और जो ज़रूर साहब हैं इन्होंने बताया, तो हमारे पास आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि ये एक अलमिया सा महसूस होता है कि फूड सप्लीमेंट आप ज़रूर इस्तेमाल करें,
लेकिन एक तो उसका ये देखना कि वो आया काबिल इस्तेमाल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूड सप्लीमेंट आते हैं मार्केट में, आप जज ही नहीं कर पा रहे होते कि हम कौन सा वाला दें। दूसरा हमारे पास ये मामला आ जाता है कि मरीज़ इसमें कमज़ोर होता चला जाता है, तो उसकी राय में ये होता है कि मैं शायद फूड सप्लीमेंट से ठीक हो जाऊँ। लेकिन ज़रूर साहब ने बड़ी अच्छी हमें डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं कि हमारा लीवर ही बीमार है। जब एक चीज़ बीमार है, आप उसको ताकत की चीज़ें देंगे तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। हमें उसकी सहूलत की चीज़ें देनी है, पहले उसको ठीक करना है, उसको नरम ग़िज़ाएँ देनी है। वो बेचारा फूड सप्लीमेंट से तो और परेशान हो जाता है। तो आपने पहले तो नरम खुराक की तरफ जाना है, उसको नरम खुराक देनी है, जैसे नरम दलिया बना के दे सकते हैं, हम जौ का दलिया नरम बना के दे सकते हैं। हम लौकी को प्रेफर करते हैं, इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है हमारी लौकी। हज़रत ने भी फरमाया हमारे नबी पाक में कि लौकी का इस्तेमाल करो। आश जौ बहुत तिब्ब मशहूर है। जी हाँ, बिल्कुल आश जौ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आलू बुखारा है, इमली है, लौकी है, टिंडे, बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जो फूड सप्लीमेंट के तौर पर हम ले सकते हैं, लेकिन इनका सही इस्तेमाल हमें पता हो। तबीब के मशवरे से। तबीब के मशवरे से नहीं, जैसे कि कासिम साहब ने फरमाया कि हम ले रहे होते हैं और हमें मिजाज ही नहीं पता होता। एक तो मिजाज है जो हमारा मर्ज है, एक मिजाज है जो हमारा पेशेंट है, एक मिजाज जो ऑर्गन्स हमारे जो तकलीफ में आ गए हैं, और एक जो खुराक हम ले रहे हैं। अब एक अच्छा तबीब ही उसको जज कर सकता है कि ये सारे मीठे क्या बन रहा है और मैं कौन से खुराक इसे दूँ, तो ये एज अ फूड सप्लीमेंट मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात कि हमें जी सर आप कुछ कहें। अक्यूट फेज में क्योंकि लिवर में सोजिश होती है और लिवर अपने साइज से भी बड़ा हो जाता है और उस पर ऑलरेडी वो मेल फंक्शनिंग है, तो उस अक्यूट फेज में और जब शुगर का निज़ाम ऐसा है कि जब लिवर डिजीज होता है और मेल फंक्शनिंग होता है या स्ट्रेन होता है, तो उस वक्त नाज़िया होता है और वॉमिटिंग भी होती है। नाज़िया तो लाजमी होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, दिस इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस। ऐसी सूरत में कुछ भी खाना, कोई भी सप्लीमेंट कंट्राइंडिकेटेड, कुछ भी नहीं देना चाहिए सिवाय ग्लूकोज और पानी के। हत्ता कि तली चीज़ें और अंडा और कुछ प्रोटीन डाइट नहीं देते हैं, लेकिन यूँ ही मरीज को नाज़िया खत्म हो जाता है और भूख लगने लगती है, ये साइन है कि अब लिवर फंक्शनिंग हो रहा है। उस वक्त अगर आप प्रोटीन देंगे तो अच्छा है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। उस वक्त आप उसको आहिस्ता आहिस्ता ग़िज़ा नॉर्मल देनी शुरू कर दें। उस वक्त परहेज लंबा परहेज कंट्राइंडिकेटेड है, वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। उस वक्त ज़्यादा परहेज करेंगे तो मरीज की इम्यूनिटी कम होगी, तो उस वक्त आप प्रोटीन जब उसका खाने को दिल चाहने लगे और जब उसका बुखार उतर जाए, जब मछली वछली बंद हो जाए, तो आप उसको दिल दे सकते हैं, उसको गोश्त भी दे सकते हैं। थैंक यू सर। सर मेरा तमाम पैनलिस्ट से ही सवाल है और इस पर ऑडियंस भी हमें सजेशंस दे सकते हैं। जैसे कि हमने ज़हूर साहब के लेक्चर में सुना कि ये ऐसा मर्ज़ नहीं है जिससे हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। हम वैक्सीनेशन के ज़रिए, स्क्रीनिंग के ज़रिए, एहतियात के ज़रिए से छुटकारा मुमकिन है। सो वो क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए? हमदर्द बतौर इदारा भी हमदर्द के पास अपनी एजुकेशन सेटअप्स भी हैं और हॉस्पिटल सेटअप्स भी हैं कि हम क्या स्ट्रेटजीज़ को अपनाएं कि इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल करने में हम अपना कम्युनिटी के हवाले से रोल प्ले कर सकें। सो आप सर पहले मैं चाहूँगी कि आप से ही हम शुरुआत करें। जैसा कि इन लोगों ने बहुत डिटेल में बहुत शानदार तरीके से बताया कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, बहरहाल इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और जैसे हेपेटाइटिस ए और ई, क्योंकि ये गंदे पानी यानी कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड वाटर में
और इस मामले में एहतियात करें तो ये हेपेटाइटिस ए और ई से बचा जा सकता है। जो फूड होता है गर्मियों में जब हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं और लोड शेडिंग की वजह से वो लाइट बंद होती है और रेफ्रिजरेटर प्रॉपर रेफ्रिजरेशन नहीं हो पाती तो वो फूड भी कंटामिनेट हो जाता है और उस फूड को इस्तेमाल करने से हेपेटाइटिस ए हो सकता है। हम उस चीज़ में ये प्रिवेंटेबल है। तो जैसे हमने कोई फूड लिया है और वो नॉन रेफ्रिजरेटेड है या पोरली रेफ्रिजरेटेड है तो उससे बचना चाहिए। और उसको बारे में एहतियात जरूरी है। इसके लिए अवेयरनेस सेशन हमें करने चाहिए, हमें प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे, यानी हम सिर्फ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का इंतज़ार ना करें। बाजार में हम कहते हैं कि उस जो मौसम बदलता है गर्मियाँ आती हैं तो उस वक्त जो है बाजार में जो भी फल वगैरह हो तो या तो उनको पील किया जाए या उनको बॉयल किया जाए या उनको फिर धुल जाए। I mean, either you peel or boil or you forget it, because जब ये तीन चीज़ों पे हम अमल नहीं करेंगे तो ऐसा फल जो थोड़ा सा ज़्यादा राइप है, ज़्यादा पका हुआ है, अगर हम उसको छीने बगैर इस्तेमाल करें तो वो आपको जरासीम अंदर हो जा सकता है। उससे तमाम टाइफाइड भी हो सकता है, उससे हेपेटाइटिस ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो वो लेना चाहिए जिसको आप पील कर सकें और या फिर आप ऐसी सब्जियाँ लें जो बॉयल कर सकें और अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते तो फिर आप भूल जाए। थैंक यू सर। ज़हूर साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। असबाब सित्ता ज़रूरिया के हवाले से आपने बात की, आजकल लाइफ स्टाइल मेडिसिन का भी बहुत ज़ोर है। तो आप क्या समझते हैं कि हेपेटाइटिस से बचाव के लिए तिब्बे यूनानी में क्या गाइडलाइंस मौजूद हैं? जैसे हेपेटाइटिस ए और ई के हवाले से तो सर ने बता दिया, तो हम ए और ई के हवाले से भी और हेपेटाइटिस बी सी के हवाले से भी हमें क्या मेजर्स और क्या पॉलिसीज़ बनानी चाहिए? देखिए, पॉलिसी मेकर्स तो जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब भी आए, उन्होंने कहा आप हमें बना के देंगे तो हम इम्प्लीमेंट करवा देंगे। तो तिब्बे यूनानी के हवाले से तो हम अभी तक स्टेप्स ही नहीं ले रहे। आप क्या समझते हैं हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए जो हम पॉलिसी एज ए इंस्टीट्यूट हम पॉलिसी मेकर्स को दे सकें कि वो इनको इम्प्लीमेंट करवाएँ? हमदर्द की हैसियत, जैसा कि आपने सुना है, इल्म जो है वो गोद से दूर तक है। इसी तरीके से हमदर्द इतना बड़ा है माशाल्लाह कि आज हॉस्पिटल में बैठे हमदर्द वहाँ गोद से शुरू हो रहा है। और मैंने हमदर्द से PhD की और इंशाल्लाह हमदर्द से जुड़ा रहूँगा। तो कहाँ पैदाइश से लेकर और इंतकाल तक के तमाम लेवल जो हैं वहाँ हमदर्द मौजूद है। तो ज़रूरत स्ट्रेटजी के हवाले से वो है आपकी एटीट्यूड की, इंटेंशन की, हमारे रवैयों की कि हम कुछ करना चाहें। हमदर्द ने तो प्लेटफॉर्म बना के दे दिया हर लेवल पे, चाहे वो हॉस्पिटल हो, यहाँ पैदाइश से मराइल से लेकर और फिर प्राइमरी स्कूल हो, फिर कॉलेज हो, फिर यूनिवर्सिटी हो, फिर इंडस्ट्री है, तो फिर फाउंडेशन है। तो कौन सा सेगमेंट ऑफ लाइफ है जहाँ हमदर्द नहीं है? अब हम हमदर्द से जुड़े हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस मर्ज से मुतालिक और दूसरे अमराज से मुतालिक हम उसे किस तरीके से दूर करना चाहते हैं, हमारी इस्तात कितनी है। हमदर्द हमारे साथ ही मौजूद है। तो मैं यूनानी मेडिसिन का लंबरदार हूँ, तो मुझे ये देखना है कि मेरी तिब ने मुझे क्या गाइडलाइन दी है। जब मैं तिब की डेफिनेशन पढ़ता हूँ तो वहाँ पहले प्रिवेंशन की बात होती है, पहले, फिर इलाज की बात होती है, इलाज में भी फिर ग़िज़ा की और तदबीर की, ग़िज़ा की, बाद में दवा की बात होती है। तो हमदर्द दवा का नाम नहीं है, हमदर्द एक पूरे का पूरा लाइफस्टाइल है जो पैदाइश से लेके मौत तक आपको जो है वो दे रहा है सपोर्ट। आप किस सेगमेंट से जुड़े हुए हैं, आपने वहाँ काम करना है।
मैं अगर तालीम के शोबे से जुड़ा हुआ हमदर्द में, तो मैंने तालीम के थ्रू अपने मुतालिका स्टूडेंट्स तक, रिसर्चर्स तक, अपनी सर्कल के अंदर जो है वो इस पर काम करना है। बात को अगर पूरे में बंद करें तो मैं लेक्चर में भी कह चुका, हमने अपनी इस्तात में रहते हुए हमें प्रिवेंशन की अगर हम बात कर सकते हैं या प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं तो हम वहाँ करेंगे। अगर मेरी पब्लिक में एक साख है, मैं सोशल मीडिया से मुताल्लिक़ हूँ, मैं अपनी बात आगे बढ़ा सकता हूँ, तो मैं हमदर्द के प्लेटफॉर्म से वहाँ तक बात करूँगा। मैं अगर एक अच्छा रिसर्चर हूँ तो इससे मुताल्लिक़ मुझे जो है वो रिसर्च से मुताल्लिक़ काम करना होगा। अगर कोई मेडिसिन बना रहा है तो मेडिसिन की जो गाइडलाइंस है, जो रिक्वायरमेंट है, जो फोरकास्ट है, उससे मुताल्लिक़ हमें चीज़ों में आगे बढ़ना है। अगर मैं तबीब हूँ तो तबीब के तौर पर मुझे ये देखना है कि आने वाले मरीज़ का इस वक्त लेवल क्या है, उसके दवा की किस हद तक ज़रूरत है, उसके मुतालिकीन इससे मुतासर हो सकते हैं, ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है या ब्लड बॉर्न डिजीज़ है, तो मुझे वहाँ आगाही नहीं है। और जैसे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का आपने जिक्र किया और उन्होंने कहा आप बना के दें और हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल अगर वो इम्प्लीमेंट कर दें तो बहुत अच्छी बात है। हमारे BMS ग्रेजुएट जो है वो इस हवाले से तैयार हैं। रूरल एरियाज़ में बहुत हेल्थ का बुरा हाल है। ये ग्रेजुएट्स अगर इनको मौका दिया जाए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप बना के दिए जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ थोड़ा सा टफ है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में इनका बहुत अच्छा किरदार हो सकता है प्राइमरी हेल्थ केयर के हवाले से, जिसके नतीजे में डिजीज़ का बर्डन भी कम होगा और जो टर्शरी हेल्थ केयर सेटअप्स पे बर्डन है और बहुत मैसिवली गवर्नमेंट जो है वो बजट का हिस्सा उसमें लगा रही होती है, तो वहाँ यूनानी मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। थैंक यू सो मच ज़हूर साहब। यानी हमें कलेक्टिवली ऐसे हमदर्दियन हमें हर फोरम पे ही इस पे काम करने की ज़रूरत है और हम एक प्रोग्राम की सूरत में एक जो है बाकायदा स्ट्रेटजीज़ को बनाते हुए हम इस पे काम करें और यकीनी तौर पे हम इस हवाले से जो है हमदर्द के जितने भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कलेक्टिवली हमें चाहिए कि हम इस पे कोई बाकायदा प्रोग्राम तश्कील दें और सिर्फ इस डिज़ीज़ को जो है एक डेग तक महदूद ना रखें अवेयरनेस फैलाने तक, बल्कि हम इस अवेयरनेस को जो है प्रिवेंशन की तरफ ले जाएं। थैंक यू सो मच। आप तमाम पैनलिस्ट का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपनी इतनी इंसाइटफुल आंसर्स किए। जी सर, प्लीज़ माइक दीजिएगा। सॉरी, एक पॉइंट के स्प्रेड में एक पॉइंट रह गया था, वो हमारे लोग जो दांत निकलवाते हैं और डेंटिस्ट से, और उसका जो ये इक्विपमेंट्स होते हैं, डेंटिस्ट आर ग्रेट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेडिंग। एक तो ये कि दांत निकलवाने से पहले इत्मीनान करें कि वो वाइज हैं, अनऑथोराइज जो बैठे हुए दांत निकालने वाले मेरी पूछों में उनसे दांत न निकलवाएं। और एक और चीज़ जो नाक और कान छेदने वाले, वो जो नाक और कान छेदते हैं वो उनके पास गन्स होती हैं, वो आजकल गन्स से वो छेदते हैं, वो भी ग्रेट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो वो कर सर्वाइव कोई वो उसको कोई तरीका ही नहीं है कि इसको सर्वाइव करें। तो वो गन्स इस्तेमाल ना करें नाक और कान छेदने के लिए। और डेंटिस्ट जो जो में वो बैठे हैं दांत निकालने वाले, उससे दांत ना निकले। ये सर की तरफ से खवातीन को जो है राहुल साहब ने जिक्र किया और खवातीन के लिए जो है एक खास तंबीह है। जी, हमारे साथ मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर द मौजूद हैं, सब कुछ कहना चाहते हैं। सबको माइक दीजिए। आजकल इसमें बहुत ज़रूरी जावा है जो हम लोग करते हैं और बिला तस्दीक बिला उसके हम ये कर लेते हैं, ये बहुत फैलने का बहुत बड़ा थोड़ी सी मुख्तसर मैडम को दे दीजिए, हमारे पास वक्त की बहुत तंगी है। इसमें देखें हमारे पास बचे
ख़वातीन के नाम का पार्लर वगैरह ब्यूटी का जो सिलसिला था, लेकिन अब बहुत हजरात जाते हैं। ज़रूर साहब ने फरमाया था कि अमूलिया, अच्छा हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ की किताबों के अंदर ही हम बंद कर देते हैं। हम असल में अपनी जो लाइफ है इसमें इसको लेते नहीं हैं। अब पार्लर जब जाते हैं, क्योंकि मेरा इस फील्ड से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है कई साल तक, तो उसमें मैंने देखा कि अमूलिया फ्री जो है मौजूद हैं डाइस, लेकिन नहीं लगाती ब्यूटिशियंस, क्योंकि उन्हें बचत का है, सिंपल सी चीज़ है। इसी तरह बहुत सारे ब्लीच करती हैं यहाँ बच्चियाँ, ब्लीच में अमूलिया मौजूद है। तो जब आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करवाती हैं, हम रिबॉन्डिंग करवाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं अमूलिया की, तो हमें पता होना चाहिए कि जो हम करके आए हैं पार्लर में उससे हमें नुकसान किस हद तक पहुँचा, तो उसका सदेबाप भी करना बहुत ज़रूरी है। आपको आप अपने डाइट के ज़रिए करें, आप मशरूबात के ज़रिए करें, आप माशाल्लाह तरीका बन रहे हैं तो आपके पास मेडिसिन भी मौजूद हैं। तो जैसे इमली आलू बुखारा है, दूसरी चीज़ें हैं सिंपल सी, तो कम अज़ कम जब इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करवाती हैं तो घर आने के बाद इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि जो हमारी सांस के ज़रिए वो अंदर चला गया है वो हम उसको बॉडी को डिटॉक्स कर सकें। ये बहुत बड़ा एक बन जाता है। थैंक यू सो मच तबीबा साहिबा। बस नसीम कासमी साहब अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख लें, उसके बाद फिर हम इसे क्लोज करते हैं, इस मुख्तसर गुफ्तगू कीजिएगा। निजामे के बारे में हमारे मेंबर प्रेशर कौंसिल फरदीद ने कहा कि वो फैलाव का जरिए बन रहे हैं, वो इसी वजह से बन रहे हैं कि वो लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है। निजामा करने से पहले SOP जैसे बताएंगे डॉक्टर साहब ने कि बाकायदा कुछ टेस्ट हैं, हेपेटाइटिस के टेस्ट लाजमी कराने, शुगर पेशेंट ना हो, मुख्तलिफ उसका फीवर ना हो, ये सारे SOPs होंगे तो फिर उसके बाद निजामा शुरू होगा। तो मैं क्लियर करना चाह रहा था कि एक तो ये, दूसरे की डाइट की बात की थी हमारी लुबना नहीं कि टिंडे लौकी और तोरी। इस मर्ज में अगर किसी को मर्ज आ रहा है तो कभी भी टिंडे लौकी तोरी मत दीजिएगा, क्योंकि ये मर्ज को बढ़ा देगा, क्योंकि ये कोल्ड एंड मॉइस्चर है और कोल्ड और मॉइस्चर देना ही नहीं है, इसमें हीट देना है आपको। तो हम सुन्नत की बात जरूर करते हैं, लेकिन सुन्नत को तहकीक भी करें। चलें, उसमें मेरा ख्याल है हेपेटाइटिस की डिफरेंट टाइप्स हैं और तबीबा साहिबा के जो इंसाइट है वो शायद उन्हीं इंसाइट के हवाले से होगा, और फिर हमें कुछ जो नॉलेज विस्टम मिलता है वो अपनी तिब्बी कुतुब से भी मिलता है। हम इस सेशन को यहाँ पे इख्तिताम पजीर करते हैं। थैंक यू सो मच। आप सब बिल्कुल ऐसा ही है कि शायद हम आपस में शुरू होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। आप सबकी समातों का भी, आप सबके पेशेंस का बहुत शुक्रिया, और मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू।